ایک دفعہ ایک چالاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے قریبی بازار لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیاں ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کی پر ہجوم جگہ پر کھڑے ہے کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا گدھے کے منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگیں۔ سکوے کی جھنکار سن کر لوگ متوجہ ہو گئے اور حیران ہے کر پوچھنے لگے کہ گدھے کے منہ سے سکوئی وہ بھی سونے کے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز کہنے لگا، بھائیو یہ ایک عجیب و غریب گدھا ہے اور میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ میں جب بھی پریشان اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں۔ اب تو میرے گھر میں اشرفیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھیں اور باقی کا قصہ سن کر ہر کسی کی خواہش یہی تھی کہ یہ گدھا جتنے میں بھی مل جائے سستا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخر کار ایک بڑے تاجر نے خطیر رقم کے عوض اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکوئی سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا اور اہل قرار اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس اور پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور بالآخر وہ سچ مچ پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا جو کب سے بھوکا تھا اس نے خوب چارہ کھایا مگر ایک سکوا تک نہ گرا۔ آخر وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا۔ اس نے بتایا کہ تمہاری ساتھ دھوکا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ فروخت کرنے والا بھاگ جائے فوراً اس دھوکے باز کو پکڑو۔ وہ تاجر اور اہل قریہ اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر کے باہر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے متعلق استفسار کیا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا کہ وہ تو کہیں کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، اب باہر ہی انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتوا بھیجتی ہوں، یہ جا کر انہیں اب کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت ساتھ بھی لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتوا اپنے مالک کو گھر لائے۔ دراصل اس چالاک شخص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ اس کے گھر کے باہر جمع تو اس نے اپنی بیوی کو کتوی والی پٹی پڑھائی، گھر میں پہلے سے بندھے ہوئے کتوی کو آزاد کیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتوی کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اسی کتوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب سارے لوگ یہ بات بھول کر کے وہاں کیوں آئے ہیں کتوی کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ تو بڑے کام کا ہے، بتاؤ یہ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس دھوکے باز اور چالاک شخص نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتوا اسی ہجوم میں سے ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتوا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لے کر آتا ہے اس تاجر کے ساتھ چلتے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا کہ تم ساتھ والے گاؤں جاؤ تاکہ کتوا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور کتوا بھی کہیں دور چلا گیا جو واپس نہ آیا۔ جب غلام اور کتوا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہے کر جب اسی دھوکے باز کے گھر گئے تو وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا اور اس کی بیوی کہنے لگی وہ ساتھ والے گاؤں کسی کام سے گئے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ آج ہم اس کا گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے اور یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد کے تمام لوگ اس کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر جب گزر گئی تو وہی دھوکے باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے ان کے سامنے جھک جھک کر آداب بجا لانے لگا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے خاص مہمانوں کی تکریم میں تم نے کیا؟ ان مہمانوں کو کچھ کھانے پینے کو دیا؟ اب بھوکا ہی بٹھایا ہوا ہے؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے کہ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑا سخی اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون اپنا مہمان بناتا ہے، میں نے تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہو گیا اور جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔
फौरन लहू बह निकला और उसकी बीवी लहरा कर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वहां बैठे हुए लोग उसे बुरा भला कहने लगे कि हमारे पैसों को तो रहने दो, लेकिन हमारे लिए अपनी बीवी को कत्ल करना कहाँ की दानिशमंदी है। वो चालाक और धोखेबाज कहने लगा, अब लोग फिक्र ना करो, ये हमारा रोजाना का काम है। मैं इसे गुस्से में आकर कत्ल कर देता हूं तो दोबारा इस सींग से जिंदा भी कर देता हूं। ये कहते हुए इसने दीवार पर टंगे हुए किसी जानवर के बड़े से सींग की तरफ इशारा किया। फिर वो सींग उतारा और मरी हुई बीवी के पास बैठकर सींग को मुंह में दबाकर सपेरों की तरह झूम झूम कर फूंक मार कर बजाने लगा। थोड़ी देर बाद वही मकतूला जो कुछ देर पहले सबके सामने खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, अपने जख्म पर हाथ रखे हुए उठ खड़ी हुई। तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए और एक बार फिर वो सब ये बात भूल कर के यहाँ क्यों आए हैं, इस सींग को खरीदने के दर पे हो गए। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया कि ये तलिस्माती सींग पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है और मैं इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूँगा। करते करते एक बड़े ताजिर ने सबसे ज़्यादा रकम अदा करके वो सींग खरीद लिया और सींग खरीद कर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिसने सींग खरीदा था कहने लगा, मैं जो अपनी बीवी की चख चख से तंग हूँ, आज अगर उसने लड़ाई की तो मार दूंगा और रात सुकून से गुजार कर सुबह सींग की मदद से जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत इस धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों का इकट्ठ दोबारा देखा था तो फौरन मंसूबा बनाकर इसमें अपनी बीवी को शामिल कर लिया था। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया। फिर एक खंजर लिया जिसके दस्ता में खुफिया खाना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का फल अपने दस्ते में गायब हो जाता था, और एक पुराना बेकार सींग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर रुपोश रहकर वापस आ गया। और फिर बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सींग फरोख्त कर दिया था। जिसने सींग खरीदा तो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने हसन मामूल लड़ाई शुरू कर दी। उसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में घोंप दिया। खून निकला, वो तड़पी और ठंडी हो गई। उसने उठाकर कमरे में लिटा दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर उसने बहुतेरा सींग को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया मगर वो तो मुर्दा हो चुकी थी। धीरे धीरे इसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वो पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर तमाम लोग उसके मुंतज़िर थे कि पता करे रात क्या बीती और सींग ने क्या कमाल दिखाया। वो शख्स दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाहता था मगर कुछ लोगों ने जब इसरार किया तो असल बात उगलवा ही ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि इस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और उसको देखते ही काबू करके एक बोरी में बंद करके समंदर बुर्द कर देना। सबने इस पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर वो लोग इकट्ठे होकर इस धोखेबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर उसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में डालकर समंदर की तरफ चल दिए। समंदर वहां से काफी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए वो सब लोग थक गए थे। समंदर से निस्फ फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, इसके बाद आराम से इसे पानी में फेंक देंगे। वो लोग थके हुए थे, इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने आ लिया और वो बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया मगर वो तमाम लोग तो खामन खरगोश के मजे ले रहे थे। इसी असना में वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ। इसने देखा कि लोगों का जमन गफीर एड़े तिरछा है कर सो रहा है और एक तरफ पड़ी बोरी से चीखने चलाने की आवाजें आ रही हैं। उसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि इसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा कि एक शख्स ताब कौन है, ये अर्ध गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुझे बोरी में क्यों बंद किया हुआ है, ये माजरा क्या है? धोखेबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग मेरे खानदान के हैं। ये मेरी शादी समंदर पार एक शहजादी से ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं मगर मुझे माल और दौलत की ज़रा भी हवस नहीं है। मैं तो अपनी चचाजाद लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा इसकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा, बताओ क्या मैं तुम्हारी किसी काम आ सकता हूँ? धोखेबाज कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के सामने बंद बोरी खिलेगी तो फिर उसका तुमसे शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चरवाहा ये सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी इस धोखेबाज की जगह बोरी में बंद रहकर बैठ गया।
धोखेबाज ने वहां से चरवाहे की भीड़ बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समंदर में फेंक दिया और मुतमईन हैकर अपने अपने घरों को लूट आए। अगले दिन उन्होंने देखा कि धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ बकरियां बंधी हुई है। वो बड़े हैरान हैकर जब वहां गए तो देखा कि जिसको समंदर में फेंक कर आए थे वो तो घर में बैठा अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा है। उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि हमने तो तुम्हें कल समंदर में फेंका था और आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों का रेवड़ भी है। वो धोखेबाज शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो वहां से एक जलपरी नमूदार हुई और वो मुझे अपने साथ जेरे समंदर बने घर में ले गई। वहां हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हुए बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जलपरी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातिर मुदारात की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहां का हाकिम बनाना चाहती थी, मगर जब मैंने कहा कि मेरी पहले से एक बीवी है और मैं अपने घर जाना चाहता हूं तो उसने कहा कोई बात नहीं और अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी कि अगर तुम्हारी इलाके में कोई ऐसा हुआ जो यहाँ की जलपरियों से शादी करके यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता हो तो उसे यहाँ ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहां आए हुए तमाम बूढ़े और जवान कहने लगे हम वहां जाना चाहते हैं और वहां जाकर हाकिम बनना चाहते हैं। इस धोखेबाज शख्स ने कहा कि तुम तो सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहां चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ जाने के लिए राजी कर लेंगे। धोखेबाज ने कहा ठीक है, कल सुबह के वक्त समंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करेगा। अगले रोज सुबह के वक्त धोखेबाज शख्स ने सबको बोरी में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को समंदर में फेंक दिया। इसके बाद वो बेवकूफ़ों के कस्बे का तनहा मालिक बन गया। माखज़ अरबी क़सस व इबर मन क़दीम ज़मान, उर्दू तर्जमा तौक़ीर बाहमला। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें। शुक्रिया।